Hello everyone. So today we are going to learn about the atherosclerosis. So what is atherosclerosis? There is thickening and the hardening of the large and medium-sized arteries primarily due to involvement of tunica intima. So ये होती है अपनी normal lumen of the vessels, but after fully developed lesion, there is fibrofatty plaque is formed or atheromized form which ultimately causes the obstruction in the blood flow and which further causes the atherosclerosis. So we are going to learn about what is the etiology for this. There are major risk factors and emerging risk factors. So major risk factors which are modifiable and constitutional. Modifiable which include dyslipidemia, hypertension, diabetes mellitus and smoking. What is in by dyslipidemia? There is abnormal elevation of the cholesterol or fats in the blood. Hypertension, it is which increase in the blood pressure. What is in by diabetes mellitus? There is a metabolic disorder which causes the increase in the level of blood glucose level. And last is smoking. And some are constitutional, in which there is age, sex, familial and racial factors and genetics. Emerging risk factor which includes the obesity, hormones in like estrogen deficiency or due to consumption of the oral contraceptives, stressful life, physical inactivity, homocystinuria, prothrombic factors, high CRP and infection. तब देखा आपने कि एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, लेकिन ये होता कैसे? लेट अस अंडरस्टैंड द पैथोजेनेसिस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस. So the family history, dyslipidemia, smoking, hypertension and diabetes mellitus, these are the major causes for atherosclerosis. So ये क्या करते हैं? तो diabetes mellitus due to excess glucose which alters the endothelium cell metabolism. Then hypertension due to increase in the high pressure, the forces which will cause acts on the arterial wall and ultimately causes the damage to arterial endothelium. Next is smoking. What will do the smoking is which increase the level of free radicals in the blood and also increase the level of cholesterol in the blood, which means which worsens the dyslipidemia and further causes the damage to endothelium. Next is dyslipidemia. अब दो फैक्टर्स होते हैं, LDL एंड HDL. सो लो डेंसिटी लिपिड एंड दी हाई डेंसिटी लिपिड. सो होता क्या है, ये जो हाई डेंसिटी लिपिड होता है विच ट्रांसपोर्ट्स द LDL, ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा LDL को कहाँ से, पेरीफेरी टू लीवर. क्या करेगा, HDL ट्रांसपोर्ट करेगा LDL को फ्रॉम पेरीफेरी टू लीवर और यहाँ पे क्या होगा, ब्रेकडाउन. ठीक है, यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा. लेकिन अगर यही कम हो गया तो इसका अक्यूमुलेशन बढ़ जाएगा. तो होता क्या है एथेरोस्क्लेरोसिस में, तो HDL की लेवल कम हो जाती है. क्या हो जाती है, कम. सो लो लेवल्स ऑफ HDL विच अलाउ फॉर द मोर रैपिड अक्यूमुलेशन ऑफ LDL इन द वेसल वॉल्स. सो अगर HDL ही कम हो गया तो अक्यूमुलेशन ऑफ LDL बढ़ जाएगा वेसल्स में. अब यहाँ पे सपोज ये अपनी एंडोथेलियम है, वेसल वॉल्स के एंडोथेलियम है. अगर यहाँ पे डैमेज हो गया होगा तो यहाँ का LDL जो होगा ना वो डिफ्यूज़ होगा यहाँ से यहाँ. More LDL diffuses across damaged epithelium and accumulate in the intima layer of arterial wall. So LDL, अब जो इंटिमा इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द आर्टरी. अगर इसमें क्या होता है, LDL है ना वो ऑक्सीडाइज होता है और कन्वर्ट होता है लिपिड्स में. इसमें कन्वर्ट होता है लिपिड्स में और विच अल्टीमेटली कॉज द इन्फ्लामेशन. अगर LDL ऑक्सीडाइज होकर लिपिड्स में कन्वर्ट हुआ विच अल्टीमेटली कॉजेज दी इन्फ्लामेशन. और अगर इन्फ्लामेशन हो गया तो वहाँ पे C रिएक्टिव प्रोटीन भी बढ़ जाएगा, उसकी लेवल बढ़ जाएगी. देखो, सो मोर LDL डिफ्यूजेस अक्रॉस डैमेज एंडोथेलियम एंड अक्यूमुलेट इन दी इंटिमा लेयर ऑफ आर्टेरियल वॉल. फिर LDL इन इंटिमा इज ऑक्सीडाइज इनटू लिपिड्स दैट ट्रिगर्स द क्रॉनिक इन्फ्लामेशन इन द वेसल वॉल. अगर यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है तो यहाँ पे WBCs आएंगे. तो पहले आएगा मोनोसाइट्स आएंगे. फिर वो होने के बाद मैक्रोफेजेस वहाँ पे आएंगे. मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, जो अपने सपोज अपना मैक्रोफेजेस है तो ये इन्गल्फ करेंगे अपने ऑक्सीडाइज LDL को जो कि है लिपिड्स में कन्वर्ट हो गए हैं. ठीक है, और ये बाद में फिल हो जाएंगे फैट से जिनको हम बोलेंगे फोम सेल्स. क्या बोलेंगे, फोम सेल्स. सो ये मैक्रोफेजेस थे. देखो पहले से देखते हैं. HDL ट्रांसपोर्ट करते हैं LDL को, लेकिन HDL कम हो गए इसलिए LDL बढ़ गए. LDL अक्यूमुलेट हो गए वेसल वॉल्स में. वेसल्स वॉल्स में से अब वो डिफ्यूज़ होंगे अक्रॉस डैमेज एंडोथेलियम. ठीक है, फिर ये LDL ऑक्सीडाइज हो जाएंगे लिपिड्स में जो कि ट्रिगर करेंगे इन्फ्लामेशन और वो फर्दर एलिवेट्स दी लेवल ऑफ CRP. और अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उस साइड पे अक्यूमुलेट होंगे या इनफिल्ट्रेट होंगे मोनोसाइट्स के बाद में आएंगे अपने मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, वो फैगोसाइटोस करेंगे अपने ऑक्सीडाइज LDL मतलब कि लिपिड्स को जो कि बाद में फिल हो जाएंगे फैट से और उनको हम लोग बोलेंगे फोम सेल्स. यहाँ तक ठीक है. फिर आगे बढ़ते हैं. अब जो फोम सेल्स हैं जो अपने इंटिमा लेयर, मैंने बताया आपको इनरमोस्ट लेयर ऑफ आर्टरी विच इज नोन एज इंटिमा. सो ये जो फोम सेल्स है वो अक्यूमुलेट हो जाएंगे इंटिमा लेयर में जो कि फर्दर एनलार्ज होकर बनाएंगे अपने लिपिड कोर्स. और ये जो अपने फोम सेल्स है ना वो रिलीज़ करेंगे इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स को
वो विच फर्दर proliferates दी स्मूथ मसल्स. ठीक है, अब देखते हैं आगे. अब जो सेल्स है वो डिटैच हो जाएंगे और एंटर करेंगे लिपिड कोर में. जो सेल्स डिटैच हो जाएंगे और एंटर करेंगे अपने लिपिड कोर में, और अगर यहाँ पे आए तो ये इनलार्ज हो जाएगा. लिपिड कोर जो था अपना वो इनलार्ज हो जाएगा. और अब बाद में सपोज ये लिपिड कोर है, इसके आजू बाजू में ना ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कलेक्ट हो जाएंगे, इन्फिल्ट्रेट हो जाएंगे, और इनको ही हम बोलेंगे फाइब्रस कैप. क्या बोलेंगे हम इसको? फाइब्रस कैप. सपोज ये लिपिड कोर है और इसके आजू बाजू में आ जाएंगे कनेक्टिव टिश्यू, और उनको बोलेंगे हम फाइब्रस कैप. फिर ये फाइब्रस कैप फॉर्म होने के बाद जो एथेरोमा है जो आर्टरी में था वो डेवलप हो जाएगा. सो डेवलपमेंट ऑफ द एथेरोमा. अब इसका फेट क्या है? तो इसके बाद क्या होगा? डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन होगा. क्या होगा? डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन. ठीक है, विच फर्दर कॉजेज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस. एथेरोस्क्लेरोसिस. ठीक है, let us understand the pathology of the atherosclerosis. So let us understand the pathology of the atherosclerosis. तो यहाँ पे अपने को दो चीज़ें दिखेंगे, the fatty streaks and the dots, and second one is the atheromatous or fibrofatty plaque, which is also known as atheroma. So ये क्या होता है? ये स्टार्ट हो जाता है from the first year of the life, present in all children which are older than the 10 years. These are the precursors of the atheroma. These are the precursors of atheroma, which are seen in every children which are older than the 10 years. These are prominent in the aorta. These are prominent in the aorta and major arteries. So इसमें ग्रॉस क्या होगा? ग्रॉस फीचर्स में देखेंगे तो ये मल्टीपल होंगे, फ्लैट और स्लाइटली एलिवेटेड. और फैट्स ज़्यादा दिख रहे तो ये येलोइश अपीयरेंस होगा, येलोइश एनेमिकल स्पॉट्स. ठीक है, और अगर माइक्रोस्कोपिकली देखें तो ये कंपोज होगा लिपिड लाइडेन माइक्रोफेरेज से एंड फ्यू टी लिम्फोसाइट्स. अब देखते हैं सेकेंड वन विच इज़ एथेरोमेटस और फाइब्रोफैटिक प्लाक, विच इज़ ऑल्सो नोन एज एथेरोमा. सो दिस इज द fully developed lesions, and the gross features of these are there is white to yellowish white lesions, yellowish white lesions which is raised above the luminal surface.